सेक्शन 6 क्या होता है? व्हाट इज सेक्शन 6? लीगल डिसेबिलिटी. सो लीगल डिसेबिलिटी 3 तरीके की जो दी गई है, उस केस में व्हाट विल बी द इफेक्ट, how that is an exception to the general rule that is given under section 6 of the act. All right, section 6 declares that whenever a person, the plaintiff or the applicant, is disabled, but that is only on the date of the cause of action, from when the time is to be reckoned, जब से टाइम स्टार्ट होना है तब से. ऑल राइट, जब टाइम स्टार्ट होगा तब द पर्सन हैज टू बी लीगली डिसेबल्ड, ईदर अ माइनर और एन अनसाउंड माइंडेड पर्सन. देन इन दैट सिचुएशन such a person will get the benefit of section 6. How? When the disability ceases, then he will get a fresh prescribed period from that day. इसी के कुछ modifications हमने देखे थे clause 2 onwards, that when the person is affected by 2 of such disabilities, then when both disabilities cease, जब दोनों disabilities cease होंगी तभी the fresh prescribed period will start. जब दोनों disabilities cease होंगी तभी fresh prescribed period will start. All right, that अब उसमें भी दोनों चीजें दी गई है. If at the date of cause of action दो डिसेबिलिटीज थी या फिर उस टाइम पे एक ही थी बट वो खत्म होती उसके पहले ही दूसरी डिसेबिलिटी भी स्टार्ट हो गई. इन बोथ द केसेस व्हेन द डिसेबिलिटीज सीज, देन ओनली द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड विल स्टार्ट अफ्रेश. ऑल राइट, और सेक्शन 6 ने बोला है कि फ्रेश पीरियड स्टार्ट होगा. बट अगेन मैंने आपको बताया था, अगर देखा जाए तो इट लुक्स वेरी अनजस्ट, बिकॉज अगर 12 साल का सूट का या एग्जीक्यूशन और सूट्स के तो टाइम पीरियड जो होते हैं दे आर वेरी लेंथी. सो सिचुएशन में इफ इट इज 12 years, if it is 3 years, and then we have to wait for the cessation of the disability also, the minority may be seized or the person may become a major after 5 years, 10 years, 12 years, because child in mother's womb को भी उसमें काउंट किया जा रहा है. सो बहुत लंबा टाइम उसके बाद भी वी आर गिविंग फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, वो सेक्शन 6 में बोला गया है. दैट इज व्हाई द जनरल रूल ऑफ सेक्शन 6 इज ऑलवेज रेड विथ सेक्शन 8. सेक्शन 8 पुट्स अ रिस्ट्रिक्शन अपॉन द रूल ऑफ सेक्शन 6, क्योंकि सेक्शन 8 में बोला गया है मैक्सिमम एक्सटेंशन कैन बी गिवन फॉर 3 years. And why that restraint has been imposed? Because otherwise it would delay the proceeding, it would defeat the entire purpose of the act. हमने ये act ही इसलिए बनाया था so that एक timeline add हो जाए, delay ना हो, there is an end to the litigation, there is a certainty in the relationships. But ultimately अगर हमें इतना delay करना ही है, then the ultimate purpose of the act will not be served. इसीलिए हमने सेक्शन 6 तो वहां पे दिया ही है in order to give the benefit to such disabled persons. But again, the benefit of section 6 has been again restricted by section 8 by putting a restraint of maximum 3 years of extension. इसीलिए दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है. ऑफ कोर्स जब सेक्शन 6 पढ़ते हैं तो सेक्शन 9 भी पढ़ा जाता है, बिकॉज पूरा सेक्शन 6 सेक्शन 9 पे ही बेस्ड है. सेक्शन 6 में वर्ड यूज किया गया है ऑन द डेट व्हेन द पीरियड इज टू बी रेकन्ड. दैट इज बिकॉज ऑफ सेक्शन 9, बिकॉज वंस द पीरियड स्टार्ट्स इट विल नॉट स्टॉप even by a subsequent disability. That is why on the date of the cause of action itself, that is the date of reckoning, the person has to be disabled. तो चाहे एक डिसेबिलिटी है, चाहे 2 डिसेबिलिटी है, चाहे डिसेबिलिटी कंटिन्यूज टिल द डेथ ऑफ द पर्सन,
then in that situation the legal representatives will get the same time जो कि उसको मिला होता मेजर होने पे या साउंड माइंड का होने पे, but that is from the date of the death. अगर लीगल representatives भी disabled हैं then when their disability cease then they will be getting the same time. कल हमने पढ़ा था. And the last clause that after the disability ceases and before the filing of the suit that person dies. मतलब जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हो गई उसके बाद उसने सूट नहीं फाइल किया था और उसकी डेथ हो जाती है, then a fresh period of limitation shall not be given because of section 9 that once the period starts to run no subsequent disability or inability will stop it. तो उसके बाद अगर इनएबिलिटी दैट इज डेथ भी हो जाती है then also only the remaining time period will be given to his LRs and not a fresh time period. Clear है ये? सेक्शन 6 के लिए यहां पे क्या बोला गया है? नथिंग इन सेक्शन 6 और सेक्शन 7 applies to suits to enforce rights of preemption. सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 8 अप्लाइज अपॉन, पहली चीज तो ये सेक्शन 6 और 7 का एक्सेप्शन है, उसमें भी एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ सूट्स के लिए ही प्रोवाइड किया गया है. सेक्शन 6 में सूट्स के अलावा भी तो बात की गई है. सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट सूट्स एंड एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन. But the exception, the special exception of section 8 applies only upon the suits. जब section 6 में that means cause of action के time पे the person was disabled and the cause of action is for filing the suit and not execution application. क्योंकि section 6 में suit और execution application दोनों की बात की गई है. But जो एक्सेप्शन यहां पे दिया गया है, ये दिया गया है बेसिकली फॉर फाइलिंग सूट फॉर प्रीएम्पशन. प्रीएम्पशन क्या होता है? सुना है कभी? प्रीएम्पशन जिसको हम बोलते हैं प्रीएम्प्टरी राइट. प्रीएम्पशन इज ऑल्सो नोन एज नेबर्स राइट. सुना है? इसको नेबर्स राइट भी बोला जाता है. बेसिकली द लॉ ऑफ प्रीएम्पशन इज नॉट प्रमोटेड बाय द लॉ. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्पशन है इसको बहुत ज्यादा एनकरेज या प्रमोट नहीं किया जाता है, सपोर्ट नहीं किया जाता है, बिकॉज देर आर सो मेनी लीगल प्रिंसिपल्स विच वर हेल्ड इन डिफरेंट जजमेंट्स जिसके अंदर प्रीएम्पशन के राइट को कई बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है. अब वो क्यों है पहले देखते हैं प्रीएम्पशन क्या होता है. प्रीएम्पशन या प्रीएम्प्टरी राइट का मतलब होता है द राइट ऑफ प्रायोरिटी, द राइट ऑफ प्रेफरेंस. इसको बोला जाता है नेबर्स राइट भी बोला जाता है, इसको राइट ऑफ प्रायोरिटी, राइट ऑफ प्रेफरेंस भी बोला जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दो घर है और उन दो घर के बीच में जो वॉल है, जो कनेक्टिंग वॉल है, दैट इज अ कॉमन वॉल, या फिर वो दोनों सेम एंट्रेंस है, उनकी कॉमन एंट्रेंस है, कॉमन वॉल है, कॉमन स्टेयरकेस है, कॉमन किसी भी तरीके की फैसिलिटीज, कॉमन अपेंडेजेस, कुछ भी कॉमन फैक्टर है, कैन बी अ कॉमन वॉल, कॉमन वे, कॉमन एंट्रेंस एटसेट्रा. उन दोनों में से कोई भी एक पर्सन अगर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है तो इट इज हिज ड्यूटी टू फर्स्टली ऑफर हिज प्रॉपर्टी टू द अदर पर्सन जिसके साथ वो कॉमन राइट्स, कॉमन अपेंडेजेस शेयर कर रहा है. द रीजन हियर इज कि अगर आपने उसको पहले प्रेफरेंस दी, दैट पर्सन कैन मेक द मोस्ट बेनिफिशियल यूटिलाइजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी. उसने वॉल हटा दी और उसने क्या किया, फिर उसको अपने घर को एक्सटेंड कर लिया. अगर एक कॉमन स्टेयरकेस है या कॉमन कोई भी फैसिलिटी, कॉमन एंट्रेंस है, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस ऑफ एन आउटसाइडर, कि अभी तक तो हम दोनों हैं, हम दोनों अभी तक कॉमन एंट्रेंस को यूज कर रहे थे, हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, बट अगेन इफ अ स्ट्रेंजर कम्स, हो सकता है कि वो ये कॉमन फैक्टर
मुझे अलाउ करे ना करे, ऑल राइट, कॉमन कोई भी चीज है तो एक अंडरस्टैंडिंग ना हो, फॉर दैट पर्पस प्रीएम्पशन का राइट दिया जाता है, दैट इज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस और इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्ट्रेंजर टू द प्रॉपर्टी। क्योंकि दो लोग अगर कोई कॉमन चीज तब से यूज कर रहे हैं, उनमें से एक पर्सन अगर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, सो द अदर पर्सन हैज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन कि उसको सबसे पहले वो सेल ऑफर होनी चाहिए। मतलब मैं किसी आउटसाइडर को सेल करूंगी कब, जब वो खरीदना नहीं चाह रहा होगा तब। दैट इज नेबर्स or the co-sharer's right of preemption, the co-sharer's right of priority, and the purpose here is to prevent the introduction of any stranger to the property, ताकि कोई भी स्ट्रेंजर का इंट्रोडक्शन हो उससे बेटर है कि जो ये कॉमन बेनिफिट ले रहा है आप उसी को सबसे पहले प्रेफर करोगे। बट अगेन ये राइट हमेशा एक्टिवेटेड नहीं रहता है एक पर्सन के पास, एक नेबर, एक को शेयरर के पास प्रीएम्पशन का राइट होता है बट वो डोमेंट होता है। वो एक्टिवेट कब होता है, जब मैंने किसी स्ट्रेंजर को प्रॉपर्टी सेल कर दी। जैसे ही मैंने उस पर्सन को सेल कर दी तब मेरे नेबर या जो को शेयरर है उसका राइट टू प्रीएम्पशन एक्टिवेट होगा, देन ही कैन एनफोर्स हिज राइट ऑफ प्रीएम्पशन, दैट इज द राइट ऑफ प्रायोरिटी, कि आपने उसको क्यों बेचा किसी स्ट्रेंजर को, आपको मुझे पहले ऑफर करना चाहिए था, बिकॉज इतने सालों से वी हैव बीन शेयरिंग द फैसिलिटीज, वी हैव बीन शेयरिंग द वॉल, द राइट टू वे, द एंट्रेंस, द स्टेयरकेस, द टेरेस एटसेट्रा। So in order to prevent the introduction or the interference of a stranger to the property, right of preemption is there. बट ये राइट जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये राइट एनफोर्स कब किया जा सकता है, जब किसी को सेल कर दी गई है। जब सेल कर दी उसके बाद such a person, the neighbor or the co-sharer has the right to enforce his preemptory right against me. इसको बोला जाता है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। अब अगर आप जनरली देखोगे, जैसे आप लोग मुस्लिम लॉ पढ़ रखा है, आप लोगों ने मुस्लिम लॉ पढ़ते हो तो वहां पे भी होता है प्रीएम्प्टरी राइट, आप पढ़ते हो वहां पे भी वहां पे भी प्रीएम्प्टरी राइट पढ़ा जाता है। जब आप प्रॉपर्टी लॉस पढ़ते हो, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है, वहां पे भी कुछ जगहों पे हम प्रीएम्पशन के राइट को, जैसे सेक्शन 14 का एक्सेप्शन है राइट ऑफ प्रीएम्पशन, तो वहां पे हम प्रीएम्पशन के राइट को पढ़ते हैं। सेक्शन 14 एंड टीपीए इज रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, उसके एक्सेप्शंस जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन बताया जाता है। तो प्रीएम्पशन का राइट कई जगहों पे यूज होता है, बट माना जाता है कि द कॉन्सेप्ट और द राइट ऑफ प्रीएम्पशन इज नॉट अ मच सपोर्टेड वन। लॉ डज नॉट सपोर्ट दैट राइट बिकॉज अगेन ये राइट बहुत सारे जजमेंट्स में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला गया है। द रीजन इज इट पुट्स अ रिस्ट्रेंट अपॉन द फ्रीडम। अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को मुझे किसको सेल करना है, किसको नहीं करना है, दैट इज माय पर्सनल फ्रीडम। सामने वाले पर्सन ने अगर अपना प्रीएम्पशन का राइट एनफोर्स किया तो वो ये बोलेगा आपने जो उसको सेल की है उसको कैंसिल करवाना है मुझे। क्यों? क्योंकि आपको पहले ये मुझे ऑफर करना चाहिए था। दैट इज अगेन, दिस इज अगेंस्ट दी सेलर्स। जो सेल कर रहा है, अपनी किसी को भी सेल कर सकता है ना, उसकी पर्सनल फ्रीडम है, ही हैज अ लिबर्टी टू सेल हिज प्रॉपर्टी। सो बिकॉज इट इंपोजेस अ रिस्ट्रेंट अपॉन द पर्सनल liberty or the personal freedom of that person regarding his property as to whom he wants to sell the property. That is why this right of preemption is not much supported by the law. इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। इसीलिए जो भी पर्सन अपना प्रीएम्पशन का राइट एनफोर्स करने के लिए सूट फॉर प्रीएम्पशन इंस्टीट्यूट करता है, उसके ऊपर जो बर्डन होता है टू प्रूव that his right of preemption has been violated and thus the sale should be cancelled। जो सेल ऑलरेडी आउटसाइडर को हो गई है वो कैंसिल होनी चाहिए, वो ये अपने सूट में क्लेम करता है। बट इस सूट में उसका जो बर्डन होता है, इट इज वेरी सेंसिटिव, इट इज वेरी सेंसिटिव बर्डन। व्हाई? बिकॉज लॉ प्रीएम्पशन के राइट को सपोर्ट नहीं करती, इट इज नॉट मच सपोर्टेड। तो अगर अपना बर्डन डिस्चार्ज करने में इतना सा भी गैप या फिर
उस पर्सन की इतनी सी भी फॉल्ट या इतनी सी भी कोई मिस्टेक या नेग्लिजेंस हुई, कोई भी गैप हुआ, then the suit will be dismissed. The preemptory right is not upheld. The reason here is बहुत ज्यादा लॉ इसके टूवर्ड्स फेवरेबल नहीं है, because it imposes, ultimately it imposes. ठीक है, आप शेयरर हो, को शेयरर हो, टेरेस शेयर कर रहे हो, स्टेयरकेस शेयर कर रहे हो, एंट्रेंस शेयर कर रहे हो, whatever. बट अल्टीमेटली मेरे पास एक फ्रीडम है, आई हैव अ फ्रीडम, मेरे पास तो एक डिग्निफाइड लाइफ का भी राइट है ना. So for a dignified life, I require the freedom to dispose of my property in the manner or to whom I want to. So because it imposes a restraint upon the freedom of that particular seller, इसीलिए इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता. इसीलिए बर्डन उस पर्सन पे जो प्रीएम्प्टरी राइट एनफोर्स कर रहा है बहुत ही सेंसिटिव बर्डन होता है. वन मिस्टेक और वन नेग्लिजेंस और वन गैप ऑन हिज पार्ट, द सूट इज नॉट अलाउड. और इसी रीजन से जब आप लिमिटेशन एक्ट का स्केड्यूल भी पढ़ोगे, उसमें प्रीएम्पशन के सूट के लिए जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है दैट इज 1 ईयर. सूट्स में अगर देखा जाए तो सबसे कम है, 1 ईयर इज द लीस्ट. 12 ईयर्स सबसे हाईएस्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन सूट्स में दिया गया है. सबसे कम दिया गया है किसमें? प्रीएम्पशन में. कुछ टॉर्ट में भी 1 ईयर दिया गया, बट 1 ईयर इज वन अमंग द लीस्ट वंस. सबसे कम पीरियड ऑफ लिमिटेशन. 1 साल के अंदर अगर आपने अपनी रेमेडी को एग्जीक्यूट नहीं किया तो आपकी रेमेडी एग्जॉस्ट हो जाएगी. 3 साल का, 12 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहां नहीं दिया है. मोस्टली आप देखोगे हर एक में 3 साल का, बट इसमें 1 ही साल का दिया है बिकॉज इट इज नॉट मच सपोर्टेड बाय द लॉ एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो मैंने अभी आपको बताया. इसीलिए यहां पे सेक्शन 8 में क्या बोला गया है? नथिंग इन सेक्शन 6 और in section 7 applies to suit to enforce right of preemption. That means कि अगर cause of action यहां पे अराइज हुआ, जिसका cause of action अराइज हुआ वो एक माइनर था, और ये cause of action किसके लिए था? सूट फॉर प्रीएम्पशन. प्रीएम्पशन के सूट के लिए कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, और जिसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ दैट पर्सन वाज लीगली डिसेबल्ड, फॉर एग्जांपल अ माइनर. अब अगर जनरल रूल ऑफ सेक्शन 6 अप्लाई किया जाए, उसके अकॉर्डिंग अगर ये माइनर फॉर एग्जांपल इस टाइम पे ही वाज 6 इयर्स ओल्ड, तो इसकी माइनॉरिटी सीज होने के लिए हमें कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? 12 इयर्स. और सेक्शन 6 ने बोला है कि जब माइनॉरिटी सीज होगी उस दिन से द फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल बी गिवन एज पर द स्केड्यूल. प्रीएम्पशन के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 1 ईयर. मतलब जब ये 12 साल खत्म हुए, ये मेजर हो गया, यहां से इसको वन ईयर का फ्रेश पीरियड मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6. बट सेक्शन 8 ने क्या बोला है? सेक्शन 8 ने बोला ये तो जस्टिफाइड ही नहीं है. द रीजन इज कि स्केड्यूल में ये जो प्रीएम्पशन के सूट के लिए 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया है, इसी से हमें समझ आ रहा है दैट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू लिमिट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू गिव द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड टू द सूट ऑफ प्रीएम्पशन. सबसे कम टाइम अमाउंट जो है, टाइम पीरियड जो है वो दिया है लेजिस्लेचर ने पीरियड ऑफ लिमिटेशन वाले स्केड्यूल में. लेकिन जब हम सेक्शन 6 अप्लाई कर रहे हैं तो डोंट यू थिंक द पर्पस और द लेजिस्लेटिव इंटेंट हियर इज बीइंग डिफीटेड? कहां लेजिस्लेचर ने सोचा था 3 साल भी नहीं, 1 ही साल मिलना चाहिए सूट फॉर प्रीएम्पशन के लिए, लेकिन यहां पे पहले तो 12 साल वेट करना पड़ा और उसके बाद कितना? 1 साल. डू यू थिंक दिस इज जस्ट? डू यू थिंक दिस इज फेयर? और स्पेशली जब हम प्रीएम्पशन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो मेंशन्ड है स्केड्यूल में वो देख रहे हैं, अगर लेजिस्लेचर ने उसके लिए 12 साल का टाइम दिया होता तो हम बोलते चलो लेजिस्लेचर की इंटेंशन ही है कि सूट फॉर प्रीएम्पशन वाले कॉज ऑफ एक्शन के लिए लंबा टाइम पीरियड देने का.
लेकिन उन्होंने 1 ईयर दिया, दैट मीन्स इट इज नॉट द लेजिस्लेटिव इंटेंट टू गिव सो मच टाइम टू द सूट ऑफ प्रीएम्पशन। प्लस अगर हम इस पीरियड को यहां तक सस्पेंड करके रखें और यहां से हम 1 साल का टाइम पीरियड स्टार्ट करें, तो जिसके अगेंस्ट वो प्रीएम्प्टरी राइट एक्सरसाइज करने वाला है, जो सेलर है, वो क्या इतने सालों तक अपनी प्रॉपर्टी को बेचेगा ही नहीं? यस और नो? उसी के लिए तो राइट है ना कि भाई प्रीएम्पशन का राइट है, आपने किसी और को क्यों बेचा? ये एनफोर्स करने के लिए केपेबल ही होगा आज से 13 साल के बाद। तो तब तक तो इट इंपोजेस इवन मोर रेस्ट्रेंट अपॉन द फ्रीडम ऑफ दैट पर्टिकुलर सेलर जिसके अगेंस्ट प्रीएम्प्टरी राइट एक्सरसाइज हो रहा है। यस और नो? ऑल्सो दिस विल बी अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव इंटेंट because we can clearly see that the legislative intention is not to give even 3 years of period of limitation to the suit of preemption. तो ऐसे केस में हम 12 साल 13 साल 14 साल कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अगर सेक्शन 6 देखा जाए तो चाइल्ड इन दी मदर्स वूम भी आता है, मतलब कि 18 साल और फिर 1 साल 19-20 साल तो हम उसको देंगे नहीं। टोटली अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव इंटेंट। इसीलिए बोला गया है कि सूट फॉर प्रीएम्पशन, अगर किसी भी कॉज ऑफ एक्शन में द कॉज ऑफ एक्शन इज फॉर द प्रीएम्पशन, देन सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 शैल नॉट अप्लाई। चाहे लीगली डिसेबल्ड ही क्यों ना हो, स्टिल द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल स्टार्ट एंड इट विल बी फॉर 1 ईयर। मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा, दैट मीन्स आपके पास 1 ही साल का टाइम है, दैट मीन्स आपके पास सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव सिचुएशन यहां पे बेनिफिट है, दैट यू हैव टू फाइल द सूट थ्रू द नेक्स्ट फ्रेंड और द गार्जियन। उन्हीं के थ्रू एज गिवन इन सीपीसी आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज द रूल और द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 6 विल नॉट अप्लाई हियर। टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल का ही दिया जाएगा, बिकॉज इट इज अ सूट फॉर प्रीएम्पशन। समझ आ रहा है? क्लियर है ये?